हमारी क्लास 8:30 तक होगी। इस लेक्चर का बाकी जो टाइम है वो फिर आगे किसी लेक्चर में एडजस्ट करेंगे। A very interesting and funny topic, blood relations. You people will be given a certain question and you will be asked to find about the relations between the people. Generally, in our society, females are much expert in doing so. That they can find the relations very quickly. Anyhow, maybe it is my own observation. In reality, it might not be the same. As far as this topic is concerned, you people have to apply the approach of breaking the question into components. Number two, you people have to go for searching the key word in the text. Two smart strategies I have told you people. The first is you have to break the question into small segments, and the other thing you have to go to finding the key word in the question. That keyword will take you to the answer. As far as the relations are concerned, you are very much familiar that our siblings mean our brothers, our sisters, our cousins, and our parents, our mother, our father, and their relatives, their siblings, like our aunts and uncles. And in the third generation come our grandparents, Dada, Dadi, Nana, Nani. Somewhere like this, the discussion will be like this. There are two levels of these questions. In one level, you are given the names. Where the names are given, the things are a little bit easy. And in the other stars, the names are not given. Then the things become a little more difficult. But you don't need to worry, just deal with me. My first question is, ये है आपके पास? Yes, sir. A mixed answer, yes, no. Page 158. Pointing to a photograph of a boy, Suresh said, Bateri, please. He is the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? You will be given a statement just like this. Here I have put the answers as MCQs, but in exams there will be no answers. Then you have to find the answer by yourself. Okay? This will not be part of your MCQs, it will be a 5 marks question in the ability section. Blood relation, coding, decoding, direction problem, number series are made of jumbled words or jumbled sentences. ओके इन 6 चीजों में से आपको एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। ये बहुत स्मार्ट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, और एक लाइन में इनके बाद एक वर्ड में आंसर है। जस्ट यू पीपल हैव टू अडॉप्ट द स्ट्रेटजी। नो, ही इज सेइंग पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ बॉय सुरेश सेड, कहता है एक लड़के की तस्वीर लगी हुई है, उसको देख के सुरेश कहता है उस तस्वीर की तरफ इशारा करके, he is the son of only son of my mother. अब देखिए only son of my mother, मैंने कहा था
दो चीजें बताई थी मैंने. If the question is bigger one, just break it into parts. Here the question is not bigger one. It is just a single line. He is the only son of my mother. So here is the key word. Second बात जो मैंने की थी, I said you go for the keywords that will take you toward the answer. Okay? So here the keyword is only son of my mother. Only son of my mother. बात समझ रहे हैं नहीं? Only son of my mother. मेरी माँ का एक ही बेटा है. और वो कौन है? Just apply the rule to yourself. The boys just apply the rule to yourself. The girls apply the rule to their brothers. Okay? Whenever I write a question, there is another way to solve these questions. Apply this question to yourself. And then try to find the solution. Together, he is the son of, only son of my mother. Only son of my mother means my mother has only one son. Or only one son of my mother is who? I myself. तो my son. अब क्या है? ये सुरेश के बेटे की तस्वीर है. सुरेश कहता है कि ये जो तस्वीर दीवार पे लगी हुई है, ये मेरी माँ का एक ही बेटा है, उसके बेटे की. तो जो कहता है मेरी माँ का एक ही बेटा, उसका मतलब क्या है? सुरेश खुद. तो तस्वीर किसकी है? सुरेश के बेटे की. कितने लोगों को बात समझ आई? Honestly, raise your hand. He is the only son of my mother. कौन कहता है? सुरेश. सुरेश की माँ का एक ही बेटा है. तो वो कौन है? सुरेश है. अब बात इतनी समझ आ गई. तो सुरेश जो है वो कहता है कि मेरी माँ का एक ही बेटा है, और ये तस्वीर मेरी माँ का जो बेटा है उसके बेटे की. अभी भी नहीं समझे? अब आगे समझ. इट्स वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. जस्ट कीप योर माइंड्स ओपन एंड अवेक. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेज, क्वेश्चन 2 को अभी रहने दें. अभी मैं सिर्फ जिनमें नेम्स आते हैं वो करवाऊंगा, फिर सेकंड पे जाऊंगा. इंट्रोड्यूसिंग द बॉय, अ गर्ल सेड, he is the son of the daughter of the father of my uncle How is the boy related to girl? Now this is the complex statement, a little bit complex. ब्रेक करें इसको. He is the son of the daughter of the father of my uncle. अंकल का जो फादर है वो आपका क्या लगा? दादा या नाना. यहां तक बात समझ आ गई? फिर पढ़ता हूं स्टेटमेंट को. ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल. गर्ल कह रही है कि मेरे चचा का जो बाप है, चचा का बाप है या मामू का बाप है? He is the son of the daughter of the father of my uncle. जो अंकल के फादर की बेटी होगी वो अंकल की क्या लगेगी? बहन लगेगी ना. अंकल के फादर की बेटी अंकल की क्या लगेगी? बहन लगेगी ना. तो अगर वो अंकल चचा है तो वो फिर क्या लगेगी उस लड़की की?
और अगर वो अंकल मामू है तो वो क्या लगी, या माँ या खाला। समझ आ गई बात? तो ही इज द सन ऑफ, उसका बेटा है। समझ आ गई बात? क्लियर हो पॉइंट या नहीं? ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई कहता अंकल घर, अंकल का फादर, उसकी डॉटर, उसकी डॉटर जो है इसकी क्या लगी, सिस्टर, और इसकी क्या लगी, या उसकी खाला है या माँ है, और या क्या है, तो आगे उसका बेटा है, आगे इसका बेटा है। तो इसका बेटा देखिए, अगर ये माँ है इस लड़के की तो इसका बेटा फिर इसका क्या लगा भाई, अगर खाला है या फूफी है तो उसका बेटा क्या लगा। बात समझ आई है नहीं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि the boy is brother or cousin of the girl। आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है, आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, कोई पिक्चर नहीं बनानी, कोई डिटेल नहीं देनी, कोई रिलेशन नहीं जोड़ने, आपने सिंपली एक लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है? ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? मैं फिर बताता हूं। He is the son of the daughter of the father of my uncle। Father of uncle, आपके चचा का फादर आपका क्या लगा, दादा लगा। तो आपके दादा की बेटी आपकी क्या लगी, फूफी लगी। तो फूफी का बेटा आपका क्या लगा, कजन। दूसरी तरफ जाते हैं, अंकल मामू है आपका, अब मामू का बाप आपका क्या लगा, नाना की बेटी कौन हो सकती है, या आपकी माँ हो सकती है या आपकी खाला हो सकती है। अगर यहां वो वर्ड यूज करता ओनली डॉटर तो फिर माँ होती, फिर खाला ना हो। बात समझ आई है नहीं? तो फिर अगर वो माँ है तो फिर ये लड़का उसका क्या लगा, और अगर वो चच्ची है, सॉरी फूफी है या खाला है तो फिर क्या लगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंगल लाइन में लिखना है कि the boy is cousin or brother of the girl। कितने लोगों को समझ आया? एक सेकंड, कितने लोगों को समझ आया? ऑनेस्टली बताइएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया दोबारा पूछ ले, इट्स वेरी वेरी इजी। जी सर, अगर एक आंसर लिखते हैं कजन या ब्रदर, देखिए अगर तो वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन, तो वहां पे आप वेरी पॉइंट क्लिक कर सकते हैं और वहां पे आप क्वेश्चन भी नहीं होगा। मतलब वहां ऑप्शन हो गए कजन, ब्रदर, बोथ या कोई और। अब यहाँ पे ना कजन बनता है ना ब्रदर बनता है, यहाँ बोथ बनता है इसका। ठीक है, लेकिन अगर वो नैरेटिव में पूछ रहे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर ये 2-3 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? अब अगर देखिए इसी स्टेटमेंट में यहाँ पे वो कह देता है मैटरनल अंकल और यहाँ पे वो कह देता है ओनली डॉटर। अब जब वो मैटरनल अंकल कह देगा उसके मीन्स के वो मामू, और मामू की जो है सादा कहता है ओनली सिस्टर या कहता है मामू के बाद की ओनली डॉटर, तो वो अंडरस्टूड है कि वो मदर है। तो फिर सिंगल आंसर बनता है जस्ट। क्लियर हुआ जी पॉइंट? इस ऑप्शंस को छोड़ दे, ये वैसे कॉपी कर दी उन्होंने। ये है बेसिकली आईबी के टेस्ट से रिलेटेड मटेरियल। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 2-3 दफा इसका क्वेश्चन आया है, लेकिन एमसीक्यूज में नहीं आता, वहां 5 नंबर का आता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए होते। आप लोग बता सकते, आप उनके आंसर्स को छोड़ दें जी। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है आपने मेरे से? आपने एक कोड या डी कोड बताना है, एक वर्ड लिखना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नंबर सीरीज में आपने आगे एक नंबर लिखना होता है जो आगे आता है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जंबल सेंटेंस में, जंबल वर्ड में आपको एक वर्ड के स्पेलिंग इधर उधर करके दिए होते हैं, आपने उनको सीधे करना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह आर्डर नोट में आपने 5 या 6 या 10 चीजों में से एक चीज को बाहर निकाला, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो एबिलिटी में यही एक ब्यूटिफिकेशन है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो यू कैन गेट 40 आउट ऑफ 40।
Pointing to photograph, Lata says, he is the son of the only son of my grandfather. How is the man in photograph related to Lata? अजान हो रही है, हर बंदा थिंक करे अजान के बाद से। जी, anyone who has solved? बताएं जी, आप बताएं। How? Listen, he is the only son. He is the son of only son of my grandfather. Grandfather. दादा का एक ही बेटा है और वो उसका बेटा। Grandfather could also be maternal grandfather. Here is not mentioned. Writing the only brother is not the answer. मैंने कहा इसके आंसर पे ना जाए, स्टेटमेंट पे जाए। अगर तो पैटर्नल ग्रैंडफादर है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर जो है उसका एक दादा का एक ही बेटा हो तो बाप का क्या लगेगा? बाप लगेगा। तो बाप का बेटा कौन है? वो खुद भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर अच्छा यहाँ पे एक और बात, he is the only son of my paternal grandfather. He is the only son of my paternal grandfather. ठीक है, दादा का एक बेटा है, दादा के बेटे का फिर एक बेटा है, तो वो कौन हुआ? वो खुद ही हुआ। दादा का एक बेटा, उसका बाप और उसका आगे फिर एक बेटा, वो खुद। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है। अगर नाना है ग्रैंडफादर, नाना है मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो फिर क्या होगा? कजन। और अगर दादा है, दादा का एक ही बेटा है, अब दादा का एक ही बेटा बाप, अब बाप का आगे उसने कहा सन, अब पता नहीं कितने सन है, एक है, दो है, तीन है, तो वो खुद भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? पॉइंटेड टू फोटोग्राफ लता से। अब एक और बात थी, अब यहाँ पे लता है, लता फीमेल है, तो यहाँ पे अब क्या होगा? भाई। लेकिन यहाँ पे लता तो आइडेंटिफाई तो नहीं किया हुआ कि वो फीमेल है। फीमेल है, हिंदी में वर्ड लता फीमेल है, इट इज आइडेंटिफाइड। सर कुछ नाम ऐसे हैं जो मर्दों के भी होते हैं और औरतों के भी होते हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें तो इतना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आपको आएगा उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड्स होंगे वो वेरी क्लियर होंगे, जो नेम्स हैं। तो क्या हो सकता है? उसका भाई या उसका बेटा। ठीक है।
लिखने की जरूरत है क्वेश्चन या सबकी एक्सेसिबिलिटी है इस तक? सबके पास है ये? ओके। पॉइंटेड टू फोटोग्राफ वाजपेयी सेट। माजरत के साथ ये सारा मटेरियल इंडियन है क्योंकि ये मुझे एक इंडियन बुक से चीजें मिली थी तो मैंने आज तक उनको कॉपी कर ली। यहाँ मुझे किसी बुक में मिली नहीं, किसी वेबसाइट पे मिली नहीं, तो मुझे इसका इतराफ करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने वहाँ का मटेरियल कॉपी किया। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग करते हैं मटेरियल इधर उधर से कॉपी किया, उसमें नेम चेंज किए और जब नेम चेंज किए तो मिस्टेक्स आ जाती, पता नहीं चलता क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है। तो पेपर के अंदर आपको जो भी नेम आएंगे देयर विल बी पाकिस्तानी और इंग्लिश नेम्स, इंडियन नेम्स नहीं आएंगे। These are just for display. Bajpayee, question number 6. Bajpayee said, he is the son of the only daughter of father of my brother. Father of my brother, कीवर्ड क्या है? Father of my brother. Father of my brother कौन होगा? मेरा भी वही बाप जो मेरे ब्रदर का बाप, ठीक है? और उसकी ओनली डॉटर, तो बाप की डॉटर आपकी क्या लगी? बहन लगी। तो जो बहन का बेटा है, जो बहन का बेटा है वो आपका क्या लगा? समझ आ रही बात? क्यों नहीं? सबको क्लियर है? आप किसी के साथ हो जाए, आपके पास ये है, किसी के साथ अटैच हो जाए। He is the son of the only daughter of the father of my brother. Father of my brother, my father. My father's only daughter, my sister. And my sister's son, my nephew. Okay? समझ आ गई बात? Question number 7. Deepak said to Nitin, Sir, इधर लिखा है how Bajpayee is related to the man. Bajpayee is related to the Man. in photograph. ये इसका आंसर में टनल रकम नहीं होगा। तो भाई वही हुआ ना, वाजपेयी की बात कर रहा हूँ कि वाजपेयी कहता है फोटोग्राफ जो लगी उसकी तरफ देख के कि ये मेरे भाई के बाप की एक ही बेटी उसका बेटा है। तो भाई के बाप की एक ही बेटी, भाई के बाप मीन्स के वाजपेयी के बाप, वाजपेयी के बाप की बेटी जो है वाजपेयी की क्या लगा? बहन लगी। तो बहन का बेटा क्या लगा? क्लियर है जी? वाजपेयी मेल नेम है, इंडिया का एक वज़ीर-ए-आज़म भी गुजरा है, अटल बिहारी वाजपेयी। बस करे अब इतना चीजों को कॉम्प्लेक्स करते रहे। सर ये इसका मतलब ये हुआ कि वाजपेयी जो है वो लड़के का क्या लगता है? मामू लड़की की तरफ भी मैटरनल अंकल आएगा। हाँ, इस तरफ भी मैटरनल अंकल आएगा। तो मैटरनल अंकल। अब इसका आप देखें, मैं फिर कह रहा हूँ जो आंसर्स दिए हैं उन पे ना जाए, वो समथिंग डिफरेंट है। आपने वहाँ नैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी है, तो अब आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे कि वाजपेयी इज मैटरनल अंकल ऑफ द मैन इन फोटोग्राफ। आप ये भी लिखते हैं मैन इन फोटोग्राफ इज मैटरनल नेफ्यू ऑफ वाजपेयी। आप उसको दोनों तरह से वहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली आपने जितने पॉसिबल रिलेशन हैं वो बता दें। समझ आ गई बात? Deepak said to Nitin, while playing with the football, is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. My father's wife, my mother, my mother's daughter, my sister. My sister has two brothers, okay? और उनमें से यंगर है कौन? Who is playing with football. समझ आ गई बात? तो पूछा क्या है? पूछा है why playing is related to दीपक। दीपक का भाई है। समझ आ गई बात? भाई देखिए मैंने कहा था you have to go for the keyword। तो यहाँ कीवर्ड क्या है? यहाँ कीवर्ड है my father's wife। तो my father's wife is my mother। My mother's daughter is my sister। My sister has two brothers। Okay? और अब उसमें two brothers में एक मैं हूँ, एक और है। ठीक है? तो younger of the two, ठीक है?
तो उसमें या वो खुद है या उसका भाई। अब यहाँ बताया नहीं ना कि who is younger, who is elder, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि he is little or his brother। अब यहाँ एक और चीज को क्लियर कर, Deepak said to Nitin, the boy playing football, इसका मतलब वो नितिन नहीं है, वो दूसरा है। आप लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं ना। दीपक नितिन से कहती है कि वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है, वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो कौन है? Younger of the two brothers, of the daughter of my father's wife. My father's wife जो है उसकी एक बेटी है। तो दीपक कहती है कि मेरी माँ की बेटी है। तो वो कौन हुई? दीपक हुई। तो उसके दो भाई हैं, उन दोनों में से छोटा है, तो कौन होगा? दीपक का भाई होगा ना। नितिन की तो बात ही नहीं आई यहाँ पे कि नितिन कौन है। बात समझ आई है? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, वीना who is sister-in-law of Ashok, daughter-in-law of Kalyani, Dhiraj is the father of Sandeep, who is the older brother of Ashok. How Kalyani is related to Ashok? करें कैसे? पढ़ें इस क्वेश्चन को अच्छी तरह, फिर मैं बताता हूँ। You people try to solve it. It's very easy, just you have to go for the keyword. अगर आप कीवर्ड तक पहुंच जाएंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने शोर करने का नहीं कहा। Here the keyword is Sandeep, who is only brother of Ashok. अब देखिए, बेटा संदीप जो है अशोक का भाई है। संदीप और अशोक क्या है? दोनों भाई है। वीना who is sister-in-law of अशोक, वीना क्या है? अशोक की भाभी है। और अशोक का एक ही भाई है, वो कौन है? संदीप।
तो इसका मतलब कि जो वीना है वो संदीप की क्या लगी, वाइफ। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको? क्लियर है जी? उसके बाद कहता है धीराज इज फादर ऑफ संदीप। धीराज जो है वो संदीप का बाप है। जब संदीप का बाप है तो अशोक का भी वही बाप है। क्यों? संदीप एंड अशोक द बोथ आर ब्रदर्स। अब 4 कैरेक्टर मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए। कौन कौन? संदीप, धीराज, अशोक एंड वीना। एंड only 5th character is there to link with them. Veena is sister-in-law of Ashok. अशोक की sister-in-law है and daughter-in-law of कल्याणी। कल्याणी की बहू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल्याणी is mother of Ashok as well as Sandeep. तो when धीराज is father of Sandeep and then कल्याणी is mother of Sandeep. बात समझ आ गई? कल्याणी माँ है, धीराज बाप है, उनके 2 बेटे हैं, संदीप और अशोक, और अशोक की बीवी है वीना। समझ आ गई बात? अब उसने पूछा क्या आपसे, हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक? कल्याणी इज द मदर ऑफ अशोक। बात समझ आई है नहीं? कितने लोगों को समझ आई? बेटा देखिए, वीना इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इस डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। वीना का 2 लोगों से लिंक है, अशोक से और कल्याणी से। अशोक की क्या है? भाभी। और कल्याणी की क्या है? बहू। आगे कहता है धीराज इज फादर ऑफ संदीप। धीराज जो है वो संदीप का बाप है। हु किसके लिए यूज हुआ? फॉर संदीप। हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। संदीप जो है अशोक का भाई है। इसका मतलब ये हुआ जो अशोक की भाभी है, अशोक का एक ही भाई है तो उसकी बीवी हुई ना। तो इसका मतलब है कि वीना जो है वो संदीप की बीवी है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे जो संदीप का बाप है धीराज, तो वही बाप किसका होगा? अशोक का। आगे 4 कैरेक्टर आइडेंटिफाई हो गए, वीना, अशोक, धीराज, संदीप, कल्याणी रह गए। अब देखिए जो वीना है अगर अशोक की सिस्टर इन लॉ है और साथ ही उसने कहा डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, कल्याणी की बहू है, इसका मतलब ये हुआ कल्याणी जो है वो अशोक की मां है। अब क्लियर होगी बात? एनीवन एल्स हु हैज नॉट अंडरस्टूड? यू लास्ट वन प्लीज। समझ आ गए? आपसे पूछ रहा हूं, पक्की बात है? बताएं क्या है इसमें, एक्सप्लेन करें। आप सबने मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताना है। अपने अल्फाज में मुझे समझाए, बैठ के समझा दे। वीना जो के भाभी है अशोक की, ठीक हो गया? तो ये इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, वो उसकी ब्रदर इन लॉ हुई। धीरज इज द फादर ऑफ वीना जो के who is the only brother। कीवर्ड क्या है इसमें? कीवर्ड है सुदीप, who is the only brother। संदीप इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो मैंने पहले कहा था शुरू में कि क्वेश्चन में एक कीवर्ड होगा जो आपको सारी स्टोरी बता देगा। अब अगर यहाँ पे ये ना हो तो यू कांट रीच टू द कंक्लूजन। समझ आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ये पहले तो नहीं ना मैंने करवाया किसी भी ग्रुप को, जितने भी लोग बैठे हैं। Pointing to Varman, Varman या Varman whatever. Manu said, question number 15. I am only son of one of the sons. I am only son of one of the sons of his father. How is Varman related to Madhav?
Everyone will think individually. No mistake. Question is before you. Everyone will think individually. क्या बोल रहा है माधव? किससे कह रहा है? वर्मन की तरफ इशारा करके। आई एम कौन? माधव। ओनली सन ऑफ sons of one of the sons of his father। कहता वर्मन के बाप के जो बेटे हैं उनमें से एक का बेटा मैं। वर्मन के बाप के, इसका मतलब एक से ज्यादा बेटे। आप कह सकते हैं कि वर्मन और उसके कुछ और भाई भी हैं, तो उनमें से एक का बेटा मैं। कौन? माधव कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्मन है, जो माधव है, वो वर्मन का क्या लगा? या तो उसका बेटा है और या उसका भतीजा है। फिर सोचते हैं, आई एम ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। आई एम सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। कहता है ये जो वर्मन खड़ा है ना, जो वर्मन खड़ा है, इसके बाप के जो बेटे हैं उनमें से किसी एक का बेटा है। अब समझ आई बात? तो उसके बाप के बेटे हैं, उसने कहा उसके बाप के बेटे से मतलब वर्मन भी है, वर्मन के और भाई भी। इसका यही मतलब है ना, ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। इसके बाप के जो बेटे उनमें से एक का बेटा है। इसका मतलब वर्मन और उसके और भाई भी। समझ आ रही बात? की नहीं, कभी भी नहीं आई। भाई देखिए, वर्मन खड़ा है, माधव कहता है कि ये जो शख्स है, इसके बाप के जो बेटे हैं उनमें से एक का बेटा मैं। अब यहां पे जो लिखा है इसके बाप के बेटों में से एक का बेटा, इसका मतलब वर्मन के बाप के 2, 3, 4 बेटे होंगे। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब वर्मन के बाप के 2, 3, 4 बेटे जो हैं, आप कह सकते हैं कि वर्मन जो है उसके 2, 3 भाई और भी होंगे। समझ आ गई बात क्या? तो फिर वर्मन जो है वो माधव का क्या लगा? अंकल लगा। अंकल लगा ना। अगर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वो वर्मन का बेटा है। उसने वहां स्पेसिफाई तो नहीं किया, उसने कहा इसके बाप के जो बेटे उनमें से एक का बेटा है। उसने कहा इसके बाप के जो बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी तरफ एग्जाम्पल ले जाता हूँ। आपके बाप या चचाओं में से कोई खड़ा है, नॉट स्पेसिफिक कोई से है, तो वहां पे आप भी खड़े हैं। आप किसी की तरफ इशारा करके कहते हैं, आप उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस शख्स का जो बाप है उसके 2, 3 बेटे, उनमें से एक का बेटा मैं। अब आप स्पेसिफाई नहीं करते कि मेरा बाप है या नहीं है, ठीक है? आप क्लू को उस तरफ ले जाते हैं। आप कहते हैं कि इस शख्स का जो बाप था उसके 2, 3 बेटे, उनमें से एक का बेटा मैं। अब वो जो शख्स खड़ा है वो आपका फादर भी हो सकता है, आपका चचा भी हो सकता है। आप समझ आई बात क्या? क्लियर है? तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन in which you are given the names, and with this you have 50% information that is made up. But in the next question, he will ask, A is son of B, B is brother of C, C is brother of B, like something like that. So here you will have to find the relation as well as the gender. आपने दोनों चीजों को देखना है। So it is a little bit difficult as compared to the previous section that we have done. But if you go strategically, if you go systematically, if you go with a plan, if you go with a sound thinking, the things are not difficult. Rather, it is easy.
ओके, इसमें आपने करना ये है इन क्वेश्चंस के अंदर कि आपने एक जनरेशन के लोगों को एक लाइन में लिखना है, दूसरी जनरेशन के लोगों को नीचे वाला, मतलब जो सबसे एडवांस जनरेशन लाइक you and your siblings, they will be at the bottom. Your parents, your uncles, your aunts will be in the second line. Okay? And your grandparents, they will be in the third line. Your grandparents, they will be in the fourth line. तो अगर आप एक तो इस चीज का ख्याल रखें कि एक जनरेशन को एक लाइन में लिखें, और दूसरी चीज आप स्पेसिफाई कर ले मेल और फीमेल का साइन। मैं मेल का साइन ये लगाता हूँ और फीमेल के लिए मैं ये साइन लगाता हूँ। मेरे तरीके में चलना है, गुड एंड वेल। आपने अपना कोई डेवलप करना को और साइन रखने हैं, सब कुछ। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। पेज 156 पे आइएगा, नीचे करके टाइप 2 का वर्ड लिखा हुआ है 156। एक एग्जांपल है 156 और नीचे टाइप 2 का वर्ड लिखा हुआ है। मिल गया सबको? सबको मिल गया है? कहता है ए हैज 3 चिल्ड्रन, कहता है ए के 3 बच्चे हैं। अब यहाँ ये नहीं पता ए मेल है या फीमेल है। आगे कहता है बी ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है। अब बी की जेंडर आइडेंटिफाई हो गई कि बी इज अ मेल। आगे वो कहता है सी सिस्टर ऑफ डी, और सी की जेंडर आइडेंटिफाई होगी सी इज अ फीमेल। आगे कहता ई इज वाइफ ऑफ ए, ई जो है वो ए की वाइफ है, तो ए की जेंडर भी आइडेंटिफाई होगी कि ए इज मेल। एंड मदर ऑफ डी, और डी की मां है। देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ ई, ई जो है उसके हस्बैंड की सिर्फ एक बेटी है। एक बेटी कौन है? सी है। क्या हुआ? ज्यादा ढूंढ गए। तो अब हम इसको यूं लिखेंगे, कहता ए के 3 बच्चे हैं, एक जनरेशन, चिल्ड्रन दूसरी जनरेशन। तो अब नीचे वो कहता है बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी की जेंडर आइडेंटिफाई होगी, तो मैंने क्या किया, बी के ऊपर नंबर लगा दिया। अगली लाइन में वो कहता है सी सिस्टर ऑफ डी, तो सी की भी आइडेंटिफाई होगी कि सी इज अ फीमेल, और उसके साथ आगे डी। ओके, अभी डी की आइडेंटिफाई नहीं हुई, मेरी बात समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं, ई हु इज वाइफ ऑफ ए। अब ये जो सेंटेंस है इतना, ये ए की जेंडर भी आइडेंटिफाई कर रहा है। ई हु इज वाइफ ऑफ ए, इट मीन ए इज हस्बैंड, तो ए इज मेल एंड ई इज फीमेल। बात समझ आ गई आपको? और आगे वो कहता है इज मदर ऑफ डी, ये डी की मदर है। अब सी क्या है? डी की सिस्टर है, तो जो डी की मदर है वही सी की मदर है। और बी क्या है? बी सी का भाई है, और जो डी सी की मदर है वो डी की। इसका मतलब ए इज हस्बैंड, ई इज वाइफ, बी उनका सन है, सी उनकी डॉटर है, और डी का भी नहीं पता। आगे चलते हैं, आगे उसने बताया हमें, कहता है देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ, कहता कि ई का जो हस्बैंड है उसकी एक ही बेटी, ई के हस्बैंड की एक बेटी, तो ई की भी एक ही बेटी है। तो बेटी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कौन है? सी। तो इसका मतलब डी क्या है? डी इज अ मेल, शी इज अ सन ऑफ ए। तो अब इससे मुताबिक आपसे वो जो मर्जी पूछ ले, यू कैन आंसर। फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डी एंड बी, तो डी एंड बी बोथ आर ब्रदर्स। बात समझ आई या नहीं? तो डी और बी दोनों क्या है? दोनों भाई हैं। अगर और आपसे वो पूछता है, मसलन वो आपसे कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए इज फादर ऑफ सी एंड सी इज डॉटर ऑफ ए। अब यहाँ पे आपने इस तरह से चीजों को लेके चलना है, आपने दोनों की जनरेशन को भी एक्सप्रेस करना है। समझ आ गई बात?
मतलब आप यहाँ पे वो कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, अगर आप एक लाइन लिख देंगे कि इज फादर ऑफ सी, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको साथ क्या लिखना पड़ेगा, ए इज फादर ऑफ सी एंड सी इज डॉटर ऑफ ए। आपने दोनों की जेंडर को भी साथ एक्सप्रेस करना। बात समझ आ गई? क्लियर? Page 161. And the question है, question 1 in a joint family A B C D E and F are the members. मिला है? कहता है एक joint family है जिसमें A B C D E and F ये members हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहे हैं ब्लड रिलेशन? मैंने कहा ये नाम ऐड में है, मुझे पता ही कुछ नहीं था। कहते हैं एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। B is son of C, तो जस्ट लाइक B is son of C, C को यहाँ लिखेंगे और B को यहाँ लिख के B के ऊपर हम क्या करेंगे, स्केयर डाल देंगे। क्यों? हमने शुरू में डिटरमिन किया था कि हम मेल के ऊपर स्केयर चौकटा डालेंगे और फीमेल के ऊपर दायरा लगाएंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। अगर आप कोई और साइन यूज करना चाहते हैं तो इस सब को यूज आप अपना भी डेवलप कर सकते हैं इसमें। आगे वो कहता है B son of C, A and C are husband and wife। अब यहाँ पे A and C they are husband and wife, but it is not clear who is husband, who is wife। यहाँ तक इन दो फिक्रों तक पता नहीं है अभी। आगे चलते हैं जी। C is not mother of B। If C is not mother, it means C is father। क्योंकि उसने पिछले फिक्रे में कहा कि A और C दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। आगे वो कहता है C जो है वो B की मदर नहीं है, तो मदर नहीं है तो अल्टीमेटली फादर होगा। तो C is father and A will be mother। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी? एनी प्रॉब्लम अप टू ए? आगे चलते हैं जी। E is brother of C, E is brother of C। E जो है वो C का भाई है। मैंने कहा था एक जनरेशन को एक लाइन में लिखना है। E C का भाई है, ठीक है? यहां आ गया, क्लियर है? आगे चलते हैं। D is daughter of A, D is daughter of A। D A की daughter, and next F is brother of P। अब आपके पास सबकी जेंडर और सबके रिलेशन मिल गए। ये 3 बच्चे हैं, F बॉय है, B बॉय है, D गर्ल है। A इनकी मदर है, C इनका फादर है और E जो है इस C का भाई है, तो ये इन बच्चों का क्या लगा, चचा या ताया, ठीक है? और A और E का आपस में क्या रिलेशन है, तो A इज सिस्टर इन लॉ ऑफ E। समझ आ गई बात? E और बच्चों का आपस में क्या ताल्लुक है, E इज पैटर्नल अंकल ऑफ F, B एंड D। बात समझ आई है नहीं? तो इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पहला क्वेश्चन पूछा है which is the father pair of females in the family। फैमिली में फीमेल्स कौन है दो, C and D। Sorry, A and D, sorry, A and D, they are the females। जिनके ऊपर दायरे लगे वो फीमेल्स हैं, जिनके ऊपर स्केल्स हैं वो मेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है उसका who is mother of P। A, मदर A दिया है सीक्वेंस के अंदर, वो A है। समझ आ गई बात?
एक और तरह के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जिसको हम सिंबॉलिक क्वेश्चन कहते हैं। पेज 1 टाइम तो नहीं हुआ, 15 मिनट टाइम हो जाए। 156 पे दोबारा आइएगा। टाइप 2 से ऊपर टाइप 1 है, इसको भी कर ले। अब ये उसने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, कहता A plus B means A is mother of B. A plus B A is mother of B. आगे कहता है A plus B means A is father of B. आगे कहता है A $B means A is brother of B. और लास्ट पे कहता है A $B means A is sister of B. मैं इसको जनरलाइज करूंगा। अगर दो सिंबल्स के दरमियान प्लस आता है तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड की मदर है। दो है ना, ए और बी। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर ए और बी, इट इज फॉर एवरीवन। आगे उसने नेम एसपी इस तरह के लेके आएगा कि प्लस साइन इज शोइंग द मदर, क्रॉस साइन इज शोइंग द फादर, डॉलर साइन इज शोइंग द ब्रदर। डॉलर साइन वैसे ब्रदर का ही होता है, एल्डर ब्रदर। और अल्फा साइन इज शोइंग द सिस्टर। बात समझ आ गई है? क्लियर है पॉइंट? तो अब आगे उसका क्वेश्चन ये है, तसल्ली रखिए, समझा के छोड़ूंगा, टेंशन ना लें। आज उसका क्वेश्चन है कि which of the following means P son of Q? P is son of Q. पहली ऑप्शन पे आता हूं, Q plus R at the rate of P at the rate of N. इसका क्या मतलब है? Q माँ है R की, यही मतलब हुआ ना? Q माँ है R की। मुझे कहां से पता चला? A plus B, A is mother of B, Q plus R, Q is mother of R। तो Q R की माँ है। आगे R जो है वो सिस्टर है P की, और P सिस्टर है N की। हमारा क्वेश्चन क्या है? P is son of Q। तो यहाँ P क्या आ रहा है? सिस्टर। ऐसे है ना? इसके मुताबिक P N की सिस्टर है। ठीक है? हमने कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें P is son of Q? बात समझ आ रही? आगे चलते हैं जी। Q प्लस R क्रॉस साइन, इसको क्रॉस दूसरी तरह लिख दिया, वहां उस तरह लिखा उसने, P एट द रेट ऑफ N। इसका क्या मतलब है? Q मदर है, R फादर है, और P सिस्टर है। हमने क्या ढूंढना है? P सन। इसके मुताबिक भी P क्या आ रहा है? सिस्टर आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर है। बात को समझ रहे हैं ना? उसके बाद थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। इसे Q क्रॉस R डॉलर साइन P एट द रेट ऑफ N। जी, Q फादर है R का, एक क्रॉस भी यही था ना, क्रॉस साइन सोए ना, जाग के बैठे, थोड़ा सा काम हो रहा है। Q फादर है R का, Q फादर है R का,
और आर भाई है किसका? पी का। और पी क्या है? सिस्टर है किसकी? तो यहाँ पे भी पी क्या शो हो रहा है? सिस्टर। तो हमने किसको सिलेक्ट करना है? जिसमें पी सन आए, ठीक है, जिसमें पी सन आए। लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, क्यू क्रॉस आर, $, P, $N। तो Q is father of R, Q R का क्या है? बाप। और R P का क्या है? भाई, ठीक है। और P N का क्या है? भाई। P N का क्या लगता है? भाई। तो देखिए Q R का फादर है, R P का भाई है, P N का भाई है, तो इसका मतलब R और P दोनों क्या है? ब्रदर्स। और इनका फादर कौन है? Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि P is son of Q, P is son of Q। तो यही हमने सर्च करना था। अब आप कहेंगे यहाँ पे इतना लंबा था, मैंने इतना लंबा आपको समझाने के लिए किया है कि आपको समझ आ जाए। आप देखें उसने पूछा क्या है? P son of Q। अब सन P is son of Q। अब यहाँ पे ये देखिए आप कि पहले में सिर्फ आप इतने को देखेंगे, P is sister of M, यही है ना इसका मतलब। A sister of P, ये साइन सिस्टर को शो करता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे P सिस्टर है, सिस्टर कभी भी सन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे P सिस्टर है, यहाँ पे P सिस्टर है, और यहाँ पे P ब्रदर है, जहाँ P ब्रदर है वही P सन है। तो इट्स वेरी इजी। मैं जस्ट इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में इसलिए गया हूँ, हर एक ऑप्शन को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग समझ जाएं कि हाउ टू सॉल्व। तो दिस इज अबाउट द ब्लड रिलेशन टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी हमारे पास टाइम है, यू कैन आस्क अबाउट द क्वेश्चन कि ये सॉल्व करते हैं। मैं वो कर देता हूँ। प्लीज सी द क्वेश्चन हरी can you okay? आज जो मैंने पढ़ाया पहले किसी ने पढ़ा हो ये? तो ISSP में या किसी और टेस्ट में ये चीजें कहीं पढ़ी हो? लेकिन इतना डिटेल में नहीं। हाँ? लेकिन इतना डिटेल में नहीं है वहाँ। इतना डिटेल में नहीं। तैयारी की थी कहीं से उसकी? उन्होंने नहीं करवाया? इतना डिटेल में वहाँ पे आता नहीं है तो 17 पेज नंबर बोलिएगा प्लीज। 150 M and PQ, RSP and U are 8 family members. 3 couples are there in the family. They all their children live in 3 different cities, Chandigarh, Ranchi and Delhi, but not necessarily at the same order. Q is mother of M and R. Q M और R की माँ है। M is father of S. M जो है वो S का फादर है, T का अंकल है। The one who is married with U lives in Ranchi. U is only sister-in-law of N, who is daughter-in-law of P. S neither lives in Chandigarh nor with her aunt U. तो ये इसकी कंडीशन है, इनको आप ले और थोड़ा लंबा है, अगर आप बैठ सकते तो मैं करवा देता हूँ। तो थोड़ा लंबा है, आप ट्राई कर ले, अगर ना होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले आते इसको करते। तो इसमें सर्टेन कंडीशन है, उनको देखते हुए आपने चीजों को एक्सक्लूड करते जाना है। मतलब सबसे पहली चीज है कि 3 सिटीज हैं, तो आप 3 सिटीज ABC लिख लें, ठीक है। 3 सिटीज के नाम लिख लें ABC, क्योंकि उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया सिटीज का आगे कि कौन कहाँ रहता है। अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन 3 सिटीज। अब ये भी नहीं उसने कहा कि कितने कितने लोग रहते हैं, कितने कितने लोग कहाँ रहते हैं। सिंपल उसने कहा कि हर कोई अपने बच्चों के साथ रह रहा है। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है Q इज मदर ऑफ M एंड R, तो इसका मतलब QR और M की माँ है, तो इसका मतलब QR M इन तीनों एक जगह करते रहेंगे। समझ आ गई बात की? आगे वो कहता है M is father of S and uncle of T,
MS का फादर है और T का अंकल है, ठीक है। वन हु इज मैरिड विद यू लिव्स इन रांची। अब यू जो है वो रांची में रह रहा है और जो और कोई होगा उसके साथ मैरिड वो हम निकाल लेंगे यहाँ से, वो भी रांची में रहेगा। यू इज ओनली सिस्टर इन लॉ एंड यू एंड की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो आप जब चीजों को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल रीच टू दैट सॉल्यूशन। नहीं पहुंचेंगे अगले लेक्चर में मैं पहुंचा दूंगा, टेंशन ना ले। आप बोले कौन सा क्वेश्चन मेरा लंबा है, मैं टाइम की वजह से कह रहा हूं, देयर इज नो अदर रीजन। और क्वेश्चन कोई? कौन सा? 30 नहीं सर, टाइप 157 पेज पे जो है टाइप 3। ये मेथड लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बहुत से करवा दिए। जो मैंने टाइप 1 करवाई ना, आते ही पहले क्वेश्चन करवाए वो यही थे। इसमें जो मेथड दिए हुए हैं आपने उनको फॉलो नहीं करना। उनको फॉलो करेंगे तो आप इंटेंजर हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जो मैंने सिंपल 2 बातें बताई आपको, 3 बातें अब हो गई। अगर तो जेंडर दी है तो आप सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करें और कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करें, आप कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर जेंडर नहीं दी तो जेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए मेल फीमेल के लिए कुछ साइन रख दें और चीजों को पेज पे लिखते जाएं। आपने एक जनरेशन को एक लेवल पे रखना है, दूसरी को दूसरे पे, तीसरी को तीसरे पे। मेरा जो तरीका है उसमें वो बच्चों को सबसे लोअर, उनके पेरेंट्स को सेकंड, उसको थर्ड। आप रिवर्स भी करना चाहते हैं, यहाँ बच्चे, यहाँ पेरेंट्स, यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगे। आप यूं भी कर सकते हैं, आप एक तरफ पहले फर्स्ट जनरेशन, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, ये आपका अपना मेथड है, ठीक है। आप उसके मुताबिक चीजों को तरतीब देके जो काम करेंगे ये हो जाएगा। स्टिल ना हो तो हमने आज जस्ट 1 आवर गुजारा है, अभी आपका हाफ एन आवर पड़ा है इस लेक्चर का, so we can discuss the things in next lecture further in detail. Any other question please from this topic? No? समझ आ गई है? तो 50% चीजें क्लियर हुई हैं। अभी जाके मेरी आप सबको एडवाइस है, दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो कोशिश करें कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक, आई डोंट नो कब है, कल है, परसों है, तो आज ही जाके को घंटा 1.5 घंटा इसके मजीद खुद लगाने की कोशिश करें, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिले, मैंने इसी को करना है। तो यू पीपल हैव अ हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू डिस्टर्ब मी, ओके, ताकि ये टॉपिक मजीद समझ में आ जाए। जी और बताएं, जनरल साइंस का सिलेबस ठीक जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिन लोगों के लेक्चर शुरू पे रहते हैं वो इंशाल्लाह जल्दी ही करवा देंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो है वो उसकी डिटेल हमें दे दीजिएगा कि किसके कितने कितने रहते हैं, 1-2 दिन में वो हमें बता दें, ताकि हम जब उसको अरेंज करें तो उसके हाथ से करें कि सभी लेक्चर एक पास करें। जी आपका क्वेश्चन है कोई? Any question please? No? Okay, thank you. सर